Ladies and gentlemen, I welcome you all to the Q2 FY24 post-earnings conference call of Mac Power CNC Machines Limited. Today on the call from the management we have with us Mr. Rupesh Mehta, Chairman and Managing Director, Mr. Nikesh Mehta, CEO, Mr. Rajnikant Raja, CFO, and Mr. Kishore, Company Secretary. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainties. Also, this is a reminder that this call is being recorded. I would now request the management, Mr. Rupesh Mehta, to detail us about the performance highlights for the quarter that went by, the growth plans and visions for the coming years, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. I'm Rupesh Mehta, CMD of Mac Power CNC Machines Limited. Dear friends, first of all, I earnestly welcome you all to Q2 24 post result conference call. I would quickly run you through some of the result highlight. First, then we will laterly discuss about our upcoming plans and growth. So this quarter has been marked by Mac Power's remarkable highest performance in our history in all aspects. I am delighted to announce that our company has achieved the highest number of machines we dispatched in Q2. 332 machines we dispatched in Q2, which is the highest in our Mac Power's history, and second highest ever order book. Right now we have that is already in presentation. It is nearly 190. We have a breakups also in detail. VMC, HMC, VTL, defense, including everything. We have 190 crore pending orders right now with the advance amount of 9.38. Whatever the order we have right now, it is with the advance only. We not consider any of the order where we are not getting any advances. So we are the highest in a 332 numbers machines, highest in the top line by 63.30, highest in a order book, highest in the EBITDA margin 14.28, highest PAT margin nearly 9.75 to 9.8, something like that. So this quarter is the record quarter for the Mac Power. Most of the detail we had given you in the presentation. So if you would like to have some idea, please get the presentation from the Vinay and Captify team. They make a very beautiful presentations. Right now we have a 745 turning machines, 260 VMC machines, 7 VTL, it is Nexa product, and defense. Including everything, we have 190 crore pending orders. And secondly, हमने जो किया आपका सबसे बड़ा गेम चेंज किया हमने जो Q2 के अंदर वो था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा पीयर्स कंपनी है उसमें लोएस्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, अगर आप Q2 लास्ट ईयर वर्सेस Q2 ये साल का अगर कंपेयर करते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में माइनर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू, but in terms of the percentage it's nearly a 17%, which is the lowest in India. I have a study of other peers company, nobody have a less than 24 to 25% operating cost. So हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल किया, सेम रखा, और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो था पहले बनाने में 11 डेज लगता था वो 8 डेज में बनाया,
तो हमने काफी एफर्ट किया और ऑर्डर बुक भी जंप लगाया। अभी हमारे पास जो इंडिया में सेल्स फोर्स पहले 44 समथिंग लाइक दैट था, उसको हमने अभी 79 के आसपास किया है और हम लोग वो फोर्स बढ़ा के 100 कर रहे हैं। तो ऑल टुगेदर हर चीज का एक एफर्ट देखने को मिला। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन कैपेसिटी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो भी हमने परफॉर्म किया वो सबका ओवरऑल बेनिफिट ये Q2 में मिला है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफेंस। 6 मंथ ऑर्डर जो था हमारा डिफेंस का, वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का जो हुआ था उसके सामने ऑलमोस्ट नियरली हम लोग नेक टू नेक है। स्टिल वी हैव अनदर 6 मंथ, सो डिफेंस बिजनेस विल ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 40 to 50%, which is the higher end machines with the high technology and high margin machine. तो टेंडर की अगर बीड की बात करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल बीड में टेंडर का बिडिंग जो है कितना बोलो, ठीक है 170 करोड़। ऑलरेडी 170 करोड़ का बिड हमने भरा हुआ है जो येट टू बी ओपन, और जो डोमेस्टिक का हमने भरा है वो फिगर 554 So 554 crores is the total bid submitted. Out of which domestic is 384 crores and tender is 170 crores. Yeah. So overall अगर हम बात करेंगे बिजनेस की तो हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट ईबीटा मार्जिन, हाईएस्ट पैट मार्जिन एंड प्लांट कैपेसिटी जो हमने इंक्रीज किया था उसका यूटिलाइजेशन, सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया, और सारे फिगर्स जो है वो प्रेजेंटेशन में है मेरे ख्याल से। विनय जी आपने सारे फिगर्स डाले हुए हैं ना, रिपीट करूं मैं? No, sir. I think you can talk more about your plans going forward. Okay. तो ओवरऑल ये जो ऑर्डर बुक है हमारे पास, उसकी अगेंस्ट में 190 करोड़ की जो ऑर्डर बुक्स है उसकी अगेंस्ट में मैं बात करूं तो ये वन टाइम ऑर्डर बुक्स नहीं है, मंथ टू मंथ। जैसे कि हर एवरी डे हम लोग 4 मशीन डिस्पैच करते हैं तो 5 मशीन का बुकिंग होता है, तो ऑर्डर बुक एवरी डे में प्लस माइनस होती है, बट एवरेजली ऑर्डर रिसीव्ड और ऑर्डर डिस्पैच के बीच में हमारा 20 to 25% हम लोग हर महीने में ऑर्डर रिसीव वर्सेस ऑर्डर डिस्पैच में 20 to 25% प्लस में जा रहे हैं। सो इन फॉर द नेक्स्ट फेज वी नीड टू इंक्रीज द कैपेसिटी। तो अभी हम लोग जो 1500 मशीन से 1800 की कैपेसिटी करने जा रहे थे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो हमने लास्ट मीटिंग में डिसाइड करके 2000 कैपेसिटी करने का प्लान किया है, जिसमें हमारा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो रहेगा वो 8 to 10 करोड़ के आसपास रहेगा। दूसरा जो है कि हम सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अभी 79 पीपल आर वर्किंग इन अप्रोक्सीमेटली 30 ब्रांचेस इन इंडिया, तो वो हम लोग इंक्रीज करके 100 की फोर्स करने जा रहे हैं और वो दे आर ज्वाइनिंग इन नेक्स्ट मंथ। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और कॉस्ट पे कंट्रोल लेके आ रहे हैं। सो मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर एज यूजुअल हम लोग 10 to 20% ग्रोथ विथ same expenses or EBITDA margin will increase and the PAT also will be increased and order book will be increased. So this journey is begins now, and after that 2000 machines हमारी challenges आएगी कुछ raw material की, like turret and ATC which is the highest value component after CNC control, जिसकी value turret की 1 लाख और एटीसी जो आता है उसकी 1.5 लाख रुपीस है। वो अब हम लोग जो आउटसोर्सिंग करते हैं वो हम लोगों ने इन हाउस स्टार्ट कर लिया है,
उसके लिए हमें 12 to 14 करोड़ की जरूरत है, वो अपने इन हाउस फंड से ही करेंगे और उसका रियलाइजेशन आने में 9 to 1 year लगेगा, और जिसकी ऑलरेडी टीम की रिक्रूटमेंट और मशीन्स की सिलेक्शन हो चुकी है. सो विल इंक्रीज द EBITDA by backward integration, will increase the EBITDA by controlling the expenses, and will try to jump the revenue quarter to quarter every time, because market shares का अभी भी मैक पावर है वो 2% भी नहीं ले रहा है. So all the market is open for us, because basket wise we have a 335 models, which is the highest I think in the India. Compared to our peers company, we are neck to neck or highest in 335 variants. We have a neck to neck distribution network. उनकी जहाँ पे भी सेल्स एंड सर्विस की ऑफिस है या टेक सेंटर है, हमारे पास भी सेम चीज है वहाँ पे. सो we have a lots of opportunity for the next Q3, Q4 or coming 5 years. As we committed, every year 20 to 25% का ग्रोथ हम लोग लेके आएंगे. So this journey हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और उसके लिए ऑलरेडी हमने एक Q2 में वो प्रूव कर दिया है, और Q3 के अंदर जो ऑर्डर बुक है, प्रोडक्शन जो बढ़ा है, और ये फेस्टिवल्स में भी ऑर्डर्स का फ्लो जो बढ़ा है, उससे Q3 में डेफिनेटली विल गिव यू द मोर सरप्राइजिंग रिजल्ट. थैंक यू. विनय जी, आप थोड़ा प्रेजेंटेशन से कुछ फिगर आउट करना है तो कर दीजिए विनय जी. Sir, I think you covered all the points. Okay. I would request participants now to use the option of raise hand to ask questions. Anybody who wishes to ask a question may use the option of raise hand. So we'll take the first question which has come in chat from Mr. Ankit. His first question is, what is the timeline for completing this 190 crore order book? 190 करोड़ जैसे मैंने बताया विनय जी, वो एक आज का नंबर से अपना जो Q2 के क्लोजिंग था, आज की डेट में वो नंबर बढ़ भी गया है, क्योंकि हम लोग जो डिस्पैच करते हैं एवरी टाइम, जो समझो कि हमने 25 करोड़ का डिस्पैच किया तो 30 करोड़ का रहा, तो वो ऑर्डर बुक कंप्लीट नहीं होगा 190 का, लेकिन बढ़ता ही जाएगा. लेकिन ये वन टाइम ऑर्डर्स नहीं है. 190 इज द हमारा Q2 का जो एंडिंग था उसका फिगर है. आज का रोज वो प्लस होता है, क्योंकि डिस्पैच अगेंस्ट ऑर्डर रिसीविंग रेशियो जो है वो 20 to 25% ज्यादा है. The second question is, what will be the revenue at 2000 machine capacity? Revenue, EBITDA margin will increase definitely with 2000 machines, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ज्यादा है. जब आपकी टॉप लाइन बढ़ती है तो आपका मार्जिन में भी जंप आता है, जैसे कि अभी हमारा 14.28 कितना है बोलो है ना, मतलब फिगर तो जो 14.28 जो है उसको हम लोग 2000 मशीन्स पे ये मान रहा हूं मैं कि 16 to 17% पे हम लोग जा सकते हैं. नहीं सर, हिज क्वेश्चन इज 2000 मशीन की कैपेसिटी, व्हाट विल इट, उतना उस पे कितना रेवेन्यू आप बनाएंगे सर? हाँ, एवरेज प्राइस जो है वो 20 लाख का आ रहा है, एवरेज यूनिट प्राइस हायर एंड रेगुलर मशीन्स का. तो ये 2000 मशीन्स पे प्लांट कैपेसिटी 400 का हो जाएगा. And sir, his third question is, which sector is contributing to the best demand? अभी भी कंजप्शन वाइज जो है वो ऑटोमोबाइल ही है. ओवरऑल 20 to 30% का कंजप्शन उसका ही है. बाकी तो मैंने जैसे बताया है पास्ट में कि मोर देन 3000 सेगमेंट, डाई एंड मोल्ड्स है, एरोनॉटिक है, डिफेंस है, उसके बाद आपका जनरल इंजीनियरिंग है, फार्मा है, सबको ये रिक्वायरमेंट है. तो सबसे ज्यादा जो बिजनेस मैक पावर को मिल रहा है वो जनरल इंजीनियरिंग है और ऑटोमोबाइल सेक्टर है और डिफेंस. Right. We take the question from Shyam Maheshwari. Shyam, you can unmute and ask your questions. Yeah, thanks. And congratulations, sir, on a good Thank set of numbers. सर पहला क्वेश्चन मेरे को ये पूछना था कि जो आप बोल रहे हो कि इंडस्ट्री में टेलविंड्स आ रही है, आर यू सीइंग इट अक्रॉस द इंडस्ट्री या फिर अपन ने कुछ अलग से किया जिसके कारण अपने इतने अच्छे नंबर्स आए हैं?
हाँ, इंडस्ट्रीज ने तो उतना नहीं किया लगता है, क्योंकि 5% से ज्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट शेयर्स में मैक पावर का मार्केट शेयर्स देखो तो बहुत कम था। टॉप लाइन कंपनी जो है इंडिया की, 6 कंपनी हैव 90% मार्केट शेयर। लाइक जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है उसका टर्नओवर 2000 करोड़, उसके बाद बीएफडब्ल्यू का 1300 करोड़, एलएमडब्ल्यू का 1500 करोड़। सो अदर कंपनी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, क्योंकि उनका प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट था और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट पे वो काम कर रहे थे, उसके कारण उनका टॉप लाइन बढ़ा है। तो उनके सामने उनका थ्रेट था उनकी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, और उसके सामने उनकी थ्रेट थी कि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा। तो मैंने कभी रेवेन्यू को बिजनेस मॉडल माना नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने 1000 करोड़ वर्सेस 1000 करोड़ का डेट लिया। उसके सामने उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो मेट्रो सिटी में ऑपरेट करते हैं उनका 25 to 26% आया। तो मार्जिन अगर आप देखेंगे तो बाकी कोई भी कंपनी का इतना मार्जिन नहीं है। तो मैंने हमेशा टॉप लाइन से ज्यादा मार्जिन पे और अपना डेट फ्री रखने में दिया, और हमने एक्सेलेंस किया ज्यादा, क्योंकि मार्केट खाली पड़ा था। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने बढ़ाया। उससे पहले प्लांट कैपेसिटी नहीं थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का मतलब नहीं था। अब प्लांट कैपेसिटी बढ़ी है, 600 से 1200 किया, 1200 से फिर 1500 किया, अब 2000। तो डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि ये मैक पावर के अंदर जो ये सब चीज का एग्जीक्यूशन हुआ, उसका इफेक्ट 75% और 25% मार्केट का। Understood, sir. And sir, on the capability side, you mentioned a few names. आपने Bangalore based companies की बात करी। So capability wise, what are these companies doing better in terms of generating so much revenue? ऐसा कुछ आपको capability gap दिखता है जो ये लोग better कर पा रहे हैं? उनका एक तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ी, उसके सामने उनका डेट बहुत बड़ा। तो हमने ग्रेजुअल ग्रोथ का एक मॉडल बनाया था कि 20-25%, क्योंकि कुछ कंपनियों ने 1-2 साल में डबल कैपेसिटी की थी, और उनके सामने काफी डेट लेके उनका रियलाइजेशन आने में उनको 2 to 3 years गया। तो मैंने वो मॉडल रखा था कि हम लोग टॉप लाइन से ज्यादा मार्जिन पे बहुत ध्यान देंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आए, इंटरेस्ट कॉस्ट आना नहीं चाहिए। क्योंकि वो लोग जो 1000 करोड़ में कर रहे हैं, 2% कमा रहे हैं, 3% कमा रहे हैं, 4% कमा रहे हैं, किसी का भी 5 to 6% है ही नहीं पेट में। तो अगर मैं 500 करोड़ करता हूं ना, तो भी उनके लिए उनसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर, उनसे ज्यादा मैं पैट जनरेट करूंगा। तो उनका फर्क यह है कि उनके पास कैपेसिटी है। इसमें देखो 190 करोड़ की पेंडिंग ऑर्डर के सामने आप डिस्पैच कर रहे हो 22-23 करोड़। तो अभी भी हमारे लिए डिलीवरी तो चैलेंजेस है ही, लेकिन साथ में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे ये सब की डिलीवरीज ओवरनाइट करनी है तो मुझे 100, 200, 300 करोड़ का कैपेक्स डालना पड़ेगा। लेकिन वो कैपेक्स है, उसका यूटिलाइजेशन ये प्लास्टिक बोतल या पीवीसी पाइप की प्लांट की तरह नहीं आएगा, क्योंकि खाली पैसा या कैपेक्स डालने से आउटपुट नहीं बढ़ेगा। उसमें काफी स्किल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हाईली टेक्निकल स्किल्ड वाला कंपोनेंट और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है। मैं जो टरेट की बात कर रहा हूं उसका रियलाइजेशन आने में मुझे मिनिमम 1 साल लगने वाला है। सो ग्रेजुअल ग्रोथ का मॉडल और डेट फ्री रखने का मॉडल और मार्जिन पे ध्यान देने का, 10% मार्जिन है तो वो उससे ज्यादा आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए, वो मॉडल हमने अपनाया है। लेकिन अगर उनके साथ हमें समझो कि नेक्स्ट फेज में अगर एक्सपेंशन करना है तो 2000 से 5000 का मशीन बनाना है, तो विच इज पॉसिबल विद द न्यू लैंड, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन उसके करने का टाइम अभी आया नहीं है। स्टिल वी कैन प्रोड्यूस द 500 करोड़ टर्नओवर ईयर इन दिस प्लांट ओनली। सो फोकस डाइवर्ट करके एक्सपेंशन करना, डेट लेना, और उसके बाद आपका 3000 मशीन का प्लान करना, वो अभी 2 years के बाद का फेज है। तो ये लोगों का और हमारे मॉडल में कोई फर्क नहीं है। उनके पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है, उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो हमारे पास, नेक टू नेक है सब अपना कंपटीशन में। इवन कुछ कंपनियों के पास
कुछ मॉडल्स नहीं है जो मैक पावर के पास है। तो मेन चीज हमने पास्ट में जो काम किया वो ज्यादा से ज्यादा मॉडल्स बनाए, R&D पे पैसा स्पेंड किया, कैपेसिटी पे स्पेंड किया। अब रियल टाइम है वो रियलाइजेशन लेने का, वो अब शुरू हुआ है। उस जर्नी को चालू रखेंगे। लेकिन जो गलतियां मैंने देखी है मेरी पीयर्स कंपनी में, हाई ऑपरेटेड कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और हाईली उनका इंटरेस्ट कॉस्ट, तो वो मॉडल को मैंने डे वन से ही अलग रखा है कि हम टॉप लाइन से ज्यादा ये चीजों पे फोकस करते करते 20-25% का ग्रोथ करेंगे। और ये जो ईबिटा है वो मैक्सिमम मैं मान रहा हूं कि 500 करोड़ के बाद 20% ईबिटा तक हम लोग जा सकते अंडरस्टूड सर, दैट्स वेरी एनकरेजिंग। एक और क्वेश्चन मेरे को आ रहा था ऑन द इंडस्ट्री लैंडस्केप। हम पढ़ रहे थे कि जो सीएनसी मशीन्स है, मशीन टूल्स हैं, अभी भी इंडिया में 60% इम्पोर्ट होती है, और मेजरली आपके चाइना से भी काफी मशीन्स आती है। तो उधर आपका क्या व्यू है? अब इज देयर एन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्ले आल्सो दैट इज पॉसिबल, या फिर हम कैपेबिलिटी वाइज इज देयर एनी एज दैट दीज इम्पोर्टेड मशीन्स हैव? दो तरह का इंपोर्ट हो रहा है। चाइना से बहुत कम आ रहा है मशीन, लेकिन वो सस्ता और एंट्री लेवल का मॉडल है, जिसमें हमने चाइना को बीट करके सेम फीचर्स, उससे हायर एंड फीचर्स में इंडियन प्राइस में मशीन दिया विद जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन कंट्रोल। और वो मार्केट वन साइडेड मैक पावर ने कैप्चर कर ली, लोअर एंड मशीन, एंट्री लेवल। चाइना एंट्री लेवल पे ही था, अब तो वो भी नहीं रहेगा। आफ्टर मैक पावर इज एग्रेसिव इन दिस एंट्री लेवल मॉडल ऑल्सो। तो दूसरा आता है हायर एंड मशीन, 5 एक्सिस मशीन से लेके डबल कॉलम मशीन से लेके बोरिंग है। ये ऑटोमोबाइल की तरह मशीन टूल्स जो है वो सब बहुत बड़ा वर्ड है। तो काफी मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, वो इंपोर्ट हो रही है जो इंडिया नहीं बनाता है। इंडिया बनाता है ऐसी आइटमों में पहला नंबर पे आता है नंबर ऑफ मशीन्स में टर्निंग मशीन है, जिसका इंपोर्ट है वो निग्लिजेबल है। दूसरा आता है वीएमसी, जिसका इंपोर्ट है वो 10% से ज्यादा नहीं है। और एचएमसी, वीटीएल, तो जो इंडिया बनाता है उसकी इंपोर्ट उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन मैंने खुद ने ही अपनी स्पिंडल के लिए एक 7 एक्सिस ग्राइंडिंग मशीन स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया। तो ऐसी मशीनें ज्यादा आती है जो इंडिया प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो इंपोर्ट के सामने अगर वो प्रोडक्ट हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके या बैकवर्ड इंजीनियरिंग करके बनाते हैं तो डेफिनेटली उसकी मार्केट है वो इंडिया के लिए खुली पड़ी है। जैसे कि एचएमसी मशीन है, बोलो, एचएमसी मशीन है, वो हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे। हमने खुद ने हुंडई से लिया है, कोरिया से, वो 2.5 करोड़ का लिया था। अब इंडिया में वो 1 करोड़ का मिल रहा है। तो कोई भी मशीन हम लोग इंडिया बनाएगा तो डेफिनेटली यूरोपियन और जापानीज से रेट कम रहेगा, ड्यूटी कम होगी, और स्पेयर्स एंड सर्विस की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो वो बिजनेस हम लोग अभी कर रहे हैं। जैसे कि वीटीएल, हमारे पास 7 पेंडिंग ऑर्डर है और अभी नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग 7 वीटीएल दे रहे हैं। जो हमने फोकस नहीं किया था वो हमारी नेक्सा प्रोडक्ट का है। हम डबल कॉलम फोकस कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग डबल कॉलम लेके आ रहे हैं। जो 5 साल पहले मैकपावर के आईपीओ के फंड से वो टाइप की मशीनें हमने इंपोर्ट की थी, अब इंडिया बना रहा है। तो ग्रेजुअली इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो मशीन इंडिया नहीं बनाता है वो हम सब बना रहे हैं, और जो नहीं बना रहे हैं वो सब चीज अगर हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए भी मार्केट ग्रो करे कि नहीं, तो मार्केट की रिक्वायरमेंट तो है ही ये मॉडल में। तो इंपोर्ट अभी भी ज्यादा है, लेकिन वो प्रोडक्ट का नहीं जो इंडिया बनाता है। समझा। क्योंकि मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहा था तो अभी भी 55-60% जितना, इतने हाई नंबर ऑफ मशीन्स हो रहे थे इम्पोर्ट। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि हमने एज एन इंडस्ट्री सोचा नहीं कि हम यहाँ पे कैपेसिटी डाल के एटलीस्ट वो वाला मार्केट थोड़ा ले सके फ्रॉम द आउटसाइड प्लेयर्स। नहीं, ये क्या हुआ आपका, जो मशीन्स की बात करते हैं हम लोग, तो आप हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ट्रैक्टर, मर्सिडीज, मारुति, ये टाइप की मिक्सअप वाली मशीन टूल्स मीन्स जो इंपोर्ट हो रहा है वो सारी चीज का मिला के इंपोर्ट हो रहा है।
तो हर एक कंपनी हर एक चीज नहीं बनाएगी। जिसका ग्राइंडिंग में एक्सपर्टीज है वो ग्राइंडिंग में होगा। हम लोग जो मेटल कटिंग के प्लेयर है, 6 प्लेयर जो है, और सबसे बड़ा मार्केट है मेटल कटिंग का ही। 75% मार्केट जो है इंडिया का कंजप्शन वो मेटल कटिंग का है। तो 75% मार्केट में मेटल कटिंग में हम 6 प्लेयर है। उसमें जो प्रोडक्ट बन रही है वो सब हमारे सबके पास है, लेकिन ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी अलग है। फिर सीट मेटल टेक्नोलॉजी जैसे कि लेजर कटिंग है और प्रेस बैक है, जैसे कार का ऊपर का कवर बनता है, वो टेक्नोलॉजी है, वो अलग है। लेकिन दे कंसिडर एज ए मशीन टूल्स, तो वो अलग फोकस है। कोई कटिंग वाला, कोई अपना मेटल कटिंग वाला, कोई मेटल प्रेसिंग की टेक्नोलॉजी में नहीं जाएगा। तो ये अलग सेगमेंट से इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन इंडिया ने प्रूव किया है 2010 के अंदर हमारा इंपोर्ट था 65% से ज्यादा। तो ग्रेजुअली गवर्नमेंट की भी काफी हेल्प है, R&D पे फंड देते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे भी फंड देते हैं। तो टेक्निकली हम लोगों का जो HMC था, डबल कॉलम था, 5 एक्सिस मशीन था, जो हमने काफी मशीन डिफेंस में दिया है 5 एक्सिस मशीन। तो ये सब चीज इंडिया नहीं बनाता था, वो बनाने लगा है। इवन मैकपावर ने अभी एक नया जो डिवीजन स्टार्ट किया है वो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, जो ऑलमोस्ट एक आध कंपनी को छोड़ के किसी के पास भी नहीं है। वो अभी इंडिया में ग्रोइंग स्टेज में है कि काफी कंपनीज के पास 5 से 50 मशीन की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब उनको मैन पावर की तकलीफ है, तो वो रोबोट और गैंट्री वो मशीन चलाएगी। ऑलमोस्ट 3 to 4 मशीन एक रोबोट चला सकता है। तो वो काम हम लोग ले रहे हैं अभी। पुरानी मशीन से कोई भी अदर कंपनी की या मैकपावर की, उनको भी अगर उनको ऑटोमेशन करना है कि नो मैन्स रिक्वायरमेंट, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। तो वी स्पेंड अ लॉट्स ऑफ मनी एंड टाइम फॉर द न्यू डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इंपोर्ट का कभी भी थ्रेट्स नहीं रहेगा एंट्री लेवल मॉडल को छोड़ के। लेकिन एंट्री लेवल में कोई था नहीं पहले, और मैकपावर की लो कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण कुछ मॉडल्स हमने एंट्री लेवल के भी मार्केट को इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है। तो मुझे अभी भी है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है। अभी भी कंजप्शन प्राइस अगर इंडिया 22-25,000 मशीन बनाता है, और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो अभी भी पर मंथ का उनका कंजप्शन इतना है जितना इंडिया बनाता है। तो अभी भी बहुत ग्रोथ का चांसेस है। और सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को विदाउट मशीन टूल्स कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो ही नहीं सकती है। तो गवर्नमेंट का भी प्रेशर है कि ये इंपोर्ट कम करो, और गवर्नमेंट भी ड्यूटीज डाल रही है और हमें भी एंकरेज कर रही है थ्रू अवर एसोसिएशन कि आप वो मशीन भी बनाओ जो इंडिया नहीं बना रहा है। उसके लिए हम आपको जो भी हेल्प चाहिए वो देंगे। बट हमारा टारगेट है कि अगले 5 years में हम लोग 50-50 पे आ जाएंगे। Understood, sir. Sir, I have a few more questions, but I'll get back in line because there are people waiting. Thank you for answering. Thanks, Shyam. We'll take the next question from Kush Tandon. Kush, you can unmute and ask your question. Good afternoon, sir. Congratulations on a good set of numbers. सर, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया है ठीक से और आपके कमेंट्स भी सुन लिए हैं, बट फिर भी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि इस क्वार्टर में सर कोई वन टाइम बड़ा ऑर्डर, हाई मार्जिन ऑर्डर या हाई वैल्यू मशीन ऑर्डर, ऐसा कोई इवेंट था, या गोइंग अहेड सर सस्टेनेबल Q2 नेक्स्ट few quarters we can sustain this kind of growth going ahead, sir? पहला क्वेश्चन वो है सर। नहीं, ये कोई रेगुलर बिजनेस जो चल रहा है, जो सेगमेंट से बिजनेस मिल रहा है, वही बिजनेस था। डिफेंस का था, एजुकेशन का था, नेवी का था, और रूटीन अपना VMC एंड टर्निंग। हाई मार्जिन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट था वो से फॉर एग्जाम्पल हमने 338 मशीन प्रोड्यूस किया और डिस्पैच भी किया। उसके सामने अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने सेम रखा और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दिया, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया। ओवरऑल जो हमारा इफेक्ट आया है वो उसके कारण आया है। दूसरा आया है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हमने कुछ कंपोनेंट जैसे कि टेलीस्कोपिक कवर
और जो स्पिंडल थे वो 50% हम बनाते थे, 50 आउट बाहर से लेते थे टर्निंग मशीन्स के लिए। वो ऑलमोस्ट 100% हमने इन हाउस कर दिया। तो काफी बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है, कुछ फ्लेंजिस है, कुछ ड्रॉबार्स है, ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट जो बाहर से लेते थे वो, और बड़े बड़े कंपोनेंट हमने इन हाउस किया, जिससे कि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है और ट्रांसपोर्ट अपना रिजेक्शन रेशियो है और प्रोडक्टिविटी है और मटेरियल की कॉस्ट हमारी कम हुई है। उसके अगेंस्ट में डिस्पैच ज्यादा हुआ है और अपना फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहा है। तो ये सब फैक्टर है, उसके कारण ये जंप रहा है और ये जर्नी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करती हुई दिखेगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, दैट इज वेरी हेल्पफुल। सर दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने डिफेंस और एरोस्पेस में जैसे कि 176 करोड़ की बिड डाली है जी, और दूसरा सर आपका 554 करोड़ की बिड्स हैं दूसरे ओवरऑल टोटल नंबर। सर इसमें किस टाइप का सक्सेस रेट आप देख सकते हैं सर, मतलब जो ऑर्डर बुक में कन्वर्ट होएगा, बॉल पार्क कोई परसेंटेज नंबर? ओवरऑल ये जो डिफेंस के टेंडर है उसमें मेरा रेशियो रहा है अब तक का एवरेज L1 का 10% का, और जो डोमेस्टिक है उसमें भी 15-20% तो आराम से मिलता है। प्लस इसमें हमने वो बुकिंग नहीं की ना है जिसको हमने बिड सबमिट ही नहीं किया है, लेकिन वो बुला के रिपीट ऑर्डर देता है, वो अच्छा। 10% आता है टोटल बिजनेस में एवरी मंथ, जिसमें कस्टमर के पास 2 मशीन चल रहा है, लास्ट मंथ में लिया और आज ही उसने रिपीट ऑर्डर भेज दिया। ना हमने बिड सबमिट की है, ना हमने उसके साथ डिस्कशन की है, क्योंकि वो रिपीट ऑर्डर है। तो ऐसे 10% आते हैं। तो ऑर्डर वाइज कुछ भाई ऐसे रहेगा कि जो भी हम डिस्पैच करेंगे मंथ ऑन मंथ, उससे 25% का ऑर्डर बुक हर महीने में बढ़ना चाहिए, वो हमारा टारगेट है और डेफिनेटली वो टारगेट को हम मैच कर रहे हैं। समझ गया सर। तो जैसे कि अभी 197 करोड़ का अपना ऑर्डर बुक है सर, और आप कह रहे हैं रोज ऑर्डर फुलफिल होते हैं, रोज नए ऑर्डर आते हैं, तो सर जैसे कि ये 197 का नंबर बढ़ता ही रहेगा Q3 Q4 में, ये आप कहना चाह रहे हैं? आप देखो Q1 का क्लोजिंग का देखो, वो टाइम 176 था सर। 176 था, वो 190 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में बात करेंगे तो वो 20% ज्यादा ही होगा। ओके ओके। और सर ये 2000 मशीन की जो बात है पर एनम जो कैपेक्स, वो कब तक हो पाएगा सर, कब ऑनलाइन आ पाएगा? उसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है, 45,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि हम लोगों को 25 के अंदर ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मिलेगी। 25 में? जी, ओके ओके। और सर एक सिंपल एक क्वेश्चन था, इन्वेंट्री में देख रहा हूँ 80 करोड़ की है बुक्स पे, उसमें से सर फिनिश्ड इन्वेंट्री भी होगी, बिकॉज आप गुड्स बना के रखते हैं और वो फिर डिस्पैच करते हैं जब तक एडवांस नहीं आता है, क्या वो नंबर बता सकते हैं सर? हाँ बता सकते। एक अभी हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो 60 करोड़ का है, अप्रोक्सीमेटली 60.37, जो मशीन शॉप में मशीनिंग हो रहा है या फिनिश मशीन है या बोट आउट मटेरियल है। और सेमी फिनिश गुड हमारे पास 13.21 का है जो शॉप फ्लोर पे असेंबल हो रहा है। और रेडी मशीन पड़ा है वो 6.53 का है, जिसका पेमेंट आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा। अगेंस्ट ऑर्डर रेडी पड़ा है, ड्यू टू हॉलीडेज और डिलेड इन बैंकिंग प्रोसेस 6.53 का रेडी पड़ा है, जो एवरी डे के हिसाब से डिस्पैच होगा या ऐड होगा। ओके, थैंक यू sir, once again congratulations and all the best going ahead sir. Thank you. Thanks, good. We'll take the next question from Vikram from Niveshaay. Vikram, you can unmute and ask your question. सर मेरा क्वेश्चन, सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इतना अच्छे रिजल्ट के लिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर जैसे आप बोल रहे थे कि आप बैकवर्ड इंटीग्रेटेड और आगे जाके जैसे टरेट और इसमें भी जा रहे हैं, ऑटो कंट्रोल कंपोनेंट में, तो सर कितना स्कोप है हमारे लिए कि अभी जैसे कितना सेविंग हम कर रहे हैं? आपने बताया कि 1 लाख टरेट का कॉस्ट है और 1,25,000 उसका कॉस्ट है, तो कितना हम सेव कर पाएंगे बैकवर्ड इंटीग्रेट होकर?
रफ वर्कआउट किया है उस हिसाब से 2% EBITDA पे असर आएगा मिनिमम. इट कैन सर मतलब 20-30 हजार रुपए जैसा हम सेव कर पाएंगे. सेव कर रहे हैं आफ्टर ऑल द डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट. पूरा कंप्लीट मिला के नेट मार्जिन 2% का फर्क हो. सर दूसरा, जैसे आप वीएमसी मार्केट या अपन ये जो आपका एचएमसी मशीन है जिसके अंदर अपन ने डेडिकेटेड सेल्स टीम रखा है नेक्सा डिवीजन में, तो अभी जो आप सेल्स टीम का नंबर बोल रहे थे जो 44 से 100 होने वाला है, तो ये पूरा नेक्सा डिवीजन में ही होने वाला है या ये दोनों है अपना नॉर्मल सीएनसी वाला भी और नॉर्मल इंक्लूडिंग नेक्सा. नेक्सा में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है. नॉर्मली नेक्सा के जो कस्टमर्स है वो कॉर्पोरेट कस्टमर्स है. उनको बड़ी डील है क्योंकि एक एंट्री लेवल का मशीन उनका 50-60 लाख से लेके 1.5-2 करोड़ का है. तो नेक्सा में 4-5 लोगों की जरूरत है. फिर हमने अभी थोड़ा इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशंस में ये किया है कि हमने एक प्रोडक्शन सीरीज है उसकी भी टीम सेपरेट की है, नेक्सा की भी टीम सेपरेट की है और रेगुलर मशीन्स की टीम भी सेपरेट की है. लेकिन तीनों बास्केट के अंदर वो तीनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि अगर इसको ये मॉडल चाहिए, ये टाइप की मशीन चाहिए तो इस ग्रुप को फॉरवर्ड करते हैं. तो इनडायरेक्टली तीनों एक दूसरे को पैरेलली हेल्प कर रहे हैं. अभी हमारे पास 2 टीम नहीं, इंटरनली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 3 टीम है और अभी जो नई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो रेगुलर टीम में ज्यादा रहेगी. तो सर ये वो वाला है जो अपन जो लो एंट्री मार्केट प्रोडक्ट में घुसे थे, तो उसके लिए भी सर ये सेल्स टीम का रिक्वायरमेंट रहेगा अपने को? उसमें लो मार्केट में हमने सेल्स के लोग रखे ही नहीं है क्योंकि वो फिक्स प्राइस का बिजनेस किया चाइना को बीट करने में. उसमें हमने सर्विस का आदमी रखा. टोटल बेस 20% आपका ईबीटा इंक्रीज होगा. यस सर, कंटिन्यू. हाँ, तो उसमें हमने सेल्स की फोर्स गिनी ही नहीं है. उसमें हमने खाली सर्विस के आदमी को रखा है क्योंकि वहां पे कोई डिस्कशन नहीं है. फिक्स कैटलॉग प्रोडक्ट है, उसमें कोई और टाइप की डिस्कशन है ही नहीं. तो वहां पे नहीं है. रेगुलर टीम में हम लोग ज्यादा कर रहे हैं और नेक्सा में हम लोग रिक्रूटमेंट बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहां पे 5 लोग सेल्स के चाहिए लेकिन साथ में 10 लोग एप्लीकेशंस के चाहिए जो प्रोग्रामिंग और टूल डिजाइनिंग की बात करेंगे. तो नेक्सा में जो मीटिंग्स रहेगी वो मोरली टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा रहेगी कि मेरा साइकिल टाइम कितना रहेगा, कितनी मिनट में मेरा ये जॉब बन जाएगा, क्या एक्यूरेसी आएगी, कितना सेटअप करना पड़ेगा, कितना फिक्चरिंग लगेगा, कितना टूलिंग रखेगा. तो नेक्सा प्रोडक्ट है वो बेयर मशीन से ज्यादा प्रोजेक्ट की तरह काम करने वाली टीम है. उसको सेल्स में कम और सपोर्ट में एप्लीकेशन और डिजाइनिंग की टीम ज्यादा चाहिए फील्ड में बात करने के लिए. और दूसरा हम उसमें ऐड कर रहे हैं नेक्सा में ही ये रोबोटिक और गेंट्री का, जिसमें रोबोटिक और गेंट्री की सेल्स टीम नेक्सा में काम करके कॉर्पोरेट कस्टमर को ये भी समझाएगी कि आपका एग्जिस्टिंग मशीन्स में भी हम रोबोट और गेंट्री डाल के आपकी मैन पावर की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं. सर अपने जनरली ऑर्डर हाथ में आने से लेके ऑर्डर कंप्लीट करने तक का टाइम पीरियड क्या रहता है? नॉर्मली मैं बताऊं तो 25% लोग ऐसे आते हैं सेम मंथ में बुकिंग वाले. से फॉर एग्जांपल अगर 100 बुकिंग किया है तो 25% ऐसे लोग हैं कि मुझे ये मंथ में ही चाहिए. उसको हम लोग बोलते हैं बुक एंड बिल इमीडिएटली. बाकी की जो 60% है वो नेक्स्ट मंथ में होती है और बाकी का जो है वो 90 डेज में. तो मैक्सिमम साइकिल रहेगा वो 90 डेज का रहेगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग साइट से अगर बात करेंगे तो एसपीएम मशीन से जिसकी कंपोनेंट की लीड टाइम, डिजाइनिंग टाइम ज्यादा लग रही है. और कस्टमर साइट से अगर हम बात करेंगे तो उनकी बैंक की लोन का काम चल रहा है, उनकी बिल्डिंग का काम चल रहा है, उनकी पावर का काम चल रहा है. तो दोनों साइड से मिला के मैक्सिमम 90 डेज में हम एग्जीक्यूट करते हैं सारे ऑर्डर्स. तो जो अभी अपने हाथ में ऑर्डर बुक है 170-180 करोड़ का, वो कितने पीरियड में एग्जीक्यूट होगा? नहीं, वो हम लोग
उसमें क्या है, कस्टमर को डिलीवरी टाइम लंबा है ऐसा भी बोल सकते हैं, या कुछ कस्टमर का रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ है, या फिर उनकी मार्जिन है, जैसे कि बैंक की लोन के बगैर ये लोग मशीन उठाते नहीं है क्योंकि उनमें उनको सब्सिडीज मिलता है, तो उनकी बैंक की प्रोसेस है, उनकी मार्जिन की प्रोसेस है, वो डिलेड हो सकती है। तो मोटा मोटा अगर मैंने पकड़ा कि नाम देने के बाद, जैसे कि एडवांस दिया, ऑर्डर दिया, उसके बाद हम लोग ब्रांच थ्रू एक सर्वे टीम है हमारी वहां पे, उसके पास एक सर्वे कराते हैं कि आपको मशीन की रिक्वायरमेंट कब है, प्रोसेस करते हैं कि आपने मार्जिन मनी दे दिया, आपका पावर रेडी है, आपकी जगह रेडी है, तो उसके हिसाब से वो एनालिसिस करके हमें नाम भेजते हैं। जैसे कि 190 करोड़ की ऑर्डर से उसमें से उसने एनालिसिस कर लिया कि ये 30 करोड़ के लोगों को ये मंथ में लोन हो जाएगा और उनको जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है, हम वही मशीन शॉप फ्लोर में लेंगे जिसकी हमें 100% श्योरिटी है कि वो उठा लेगा ये मशीन। क्योंकि अगर उसने स्टॉक फ्लोर को ऑक्यूपाइड कर लिया और उठाया नहीं, और हमने पूरा 190 का मशीन बना लिया, तो जगह का भी प्रॉब्लम होगा और इन्वेंट्री का भी प्रॉब्लम होगा। तो एक एनालिसिस टीम है हमारी अलग से सेल्स के साथ ब्रांचेस में, वो कस्टमर को फीडबैक फॉर्म में भराती है कि आपने एडवांस दे दिया, थैंक यू वेरी मच, अब आपका प्रोसेस में कहाँ पहुंचे, आपने बैंक को लोन का डॉक्यूमेंट्स दे दिया, मार्जिन दे दिया, आपका पावर ओके है, तो वो हिसाब से हम शॉप फ्लोर ऑक्यूपाइड नहीं हो जाए। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 90% 90 डेज में लोग मशीन मांगते हैं। ओके। एंड एक सर आपने स्टार्टिंग में बताया था Vikram, we have quite a few people in the line as well as in the chat. Can you come back in the queue, please? Okay, sure. Yeah. We'll take the next question from Ritvik Sheth. Ritvik, you can unmute and ask your question. Yeah. Hello, sir. Good afternoon. सर मेरा क्वेश्चन, आपने कॉल में बोला कि आपने 7 एक्सिस मशीन मंगाई थी स्विट्जरलैंड से अपने काम के लिए। मेरा क्वेश्चन हुआ कि और कौन प्लेयर है जो 4 एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम में आप और कौन प्लेयर काम करता है 4 एक्सिस इन वॉल्यूम इंडिया में? सब करते हैं, सातों सात प्लेयर करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम में। और अपने 190 करोड़ के ऑर्डर बुक में 4 एक्सिस एंड अबाउ का कितना स्प्लिट रहेगा? मेरे ख्याल से एवरी मंथ एक मशीन आता है डिस्पैच में। ओके। एवरी मंथ एक मशीन तो मिनिमम आता है, 4 एक्सिस साइमल्टेनियसली और 5th एक्सिस साइमल्टेनियसली। तो 12 से 15 ऑर्डर अभी पेंडिंग में हो गए 4th and 5th के साथ। ओके, तो और उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा 2-3 एक्सिस से ज्यादा रहेगा। 10% अपना ऑर्डर बुक रहेगा ये 4 एक्सिस? नहीं, 4th एक्सिस का तो बहुत रेगुलर है, हर महीने में आप समझो कि 3-4 मशीन होते हैं, लेकिन 4th के बाद 5th एक्सिस की बात है, 4th and 5th वो पर मंथ एक मशीन रहता। ओके। एंड सर कैपेबिलिटी वाइज और मतलब अपने सिवाय और कौन से प्लेयर मतलब यू वुड से के they are better than us and we need to improve our technology in the higher axis? टेक्नोलॉजी जैसा कोई वर्ड ही नहीं है हमारी लाइन में। हम 6 लोग जो है वो सारा चीज बना सकते हैं। किसने किस पे फोकस किया है, कौन सी मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, बनाने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में मुझे नहीं लगता है। अगर मैक पावर कोरोना के टाइम पे वीडियो देख के N95 मास्क का फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, CNC मशीन विद द 17 एक्सिस 17 वो 3 मंथ्स में बना सकता है, क्योंकि उस टाइम में हमें गवर्नमेंट ने बोला था लॉकडाउन में कि ये देश की रिक्वायरमेंट है, और हमने N95 मास्क मेकिंग मशीन ISI और वो 6 लेयर 7 लेयर और वो पर डे में 50,000 मास्क मेकिंग मशीन्स बनाई थी। हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसका प्रेजेंटेशन में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, उसमें हमने एक प्रोजेक्ट किया था T90 टैंक की इंजन पार्ट्स बनाने के लिए। हम L1 थे, 5 करोड़ 25 लाख का मशीन था, वो भी काफी मल्टी एक्सिस मशीन था, ऑलमोस्ट 9 एक्सिस। और उसका L2 था स्टराक जर्मनी 24 करोड़। इंडिया में किसी ने हाथ भी नहीं डाला था, लेकिन ये हमारा चैलेंज था कि हम कर सकते हैं, जिसमें हमें
निर्मला सीतारामन जी ने अवार्ड भी दिया था, HVF फैक्ट्री, हैवी व्हीकल फैक्ट्री। तो बनाने की कैपेसिटी सबकी सब है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो ये इंडिया के 6 प्लेयर है वो न बना पाए। ओके। लेकिन किसको कैसे बिजनेस पे फोकस करना है वो उनका मॉडल है, क्योंकि काफी 6 कंपनी में से 3 कंपनी तो डिफेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। ओके। 2 कंपनी है वो एक्सपोर्ट पे फोकस करती है कि हम वहां पे थोड़ा फोकस करेंगे और रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो अपनी अपनी बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूशन की मॉडल है। मैक पावर का जो चैलेंज था वो डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ में काफी साल R&D में ही निकाला था। अब उसका रियलाइजेशन का टाइम आया है, कैपेसिटी बिल्ड हुआ, इसलिए रेवेन्यू जनरेट हुआ। बाकी टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग ये मानते हैं कि सब नेक टू नेक चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। एंड सर माय लास्ट क्वेश्चन इज ऑन द इंडस्ट्री। मतलब इंडिया का इंडस्ट्री साइज क्या रहेगा पर एनम? एंड आपने बताया कि कुछ 60% अभी इम्पोर्टेड है, तो टोटल इंडस्ट्री साइज क्या रहेगा पर एनम? एंड क्या ग्रोथ रेट पे ये ग्रो हो रहा है लास्ट 3 साल में? विनय जी आपके पास है वो फिगर कंजप्शन? और Yeah, so the total industry size is around 18 to 20,000 crores in India right now. Okay. Out of which import is 60%. Domestic manufacturing is anywhere between 7 to 8,000. Okay. Okay, sir. Thank you, sir, and all the best. थैंक यू। We'll take the next question from Pankaj Gupta. हाँ, नमस्कार सर। सर एक चीज, ये अपनी जो मशीन्स हैं इनकी लाइफ कितनी होती है? हाँ, वो सेम ऑटोमोबाइल की तरह आपका 3 to 5 years बहुत अच्छी चलेगी। हाँ। फिर आपका मेंटेनेंस आएगा, आप सेकंड में बेच दोगे। तो ओवरऑल सेम आप ऑटोमोबाइल की तरह पकड़ लो, मैक्स टू मैक्स 10 साल 12 साल। वो भी फर्स्ट जनरेशन में यूज करना है माइक्रोन लेवल पे, तो 5 साल बहुत हो गए। और सर इसमें ऐसा भी कोई है कि आपका, जैसे इसमें कोई एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज होती है, टूल्स होते हैं, स्पेयर्स होते हैं, तो जनरली अगर आप 100 रुपए की मशीन बेचते हो तो उसका स्पेयर पार्ट्स हर साल कितना हो सकता है? और अभी आपके बिजनेस में कितना फ्रेश मशीन है और कितना AMC या स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है? हम उसको बिजनेस से मॉडल से ज्यादा क्वालिटी और रिलायबिलिटी और सर्विस का मॉडल है, जो ब्रांड नेम और रिपीट कस्टमर देता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी स्पेयर पार्ट खराब ही नहीं होनी चाहिए, और उसकी रेवेन्यू बढ़ती है मीन्स आपकी मशीन में ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं उसको नेगेटिव मानता हूँ, रेवेन्यू मॉडल नहीं मानता हूँ। फिर भी मैक पावर का टोटल रेवेन्यू का 1% हम लोग स्पेयर्स एंड सर्विस से कमाते हैं, लेकिन उसको मैं कभी मॉडल नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर कस्टमर को हर साल आपका स्पेयर पार्ट बदलना पड़ता है तो आपकी मशीन के अंदर परफॉर्मेंस पुअर है। जो आपकी इनडायरेक्ट जो ब्रांड है और रिपीट कस्टमर है वो बिगाड़ देगा, क्योंकि कस्टमर इतना पैसा खर्च नहीं करेगा कि उनको हर साल उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। सो अगर आपकी सेल्स के बाद सर्विस की स्पेयर की रेवेन्यू कम है तो मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं उसको एडवांटेज मानूंगा कि उनको आपकी मशीन चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी 1% है और उसको मैं कभी रेवेन्यू का मॉडल नहीं मानूंगा। तो सर आपकी ये जो मशीन्स के ऑर्डर्स आते हैं या जो आप बेचते हो, ये क्या ज्यादातर एक स्टैंडर्डाइज्ड होती है या बहुत कस्टमाइजेशंस करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और कस्टमर्स? 60 to 70% है वो कैटलॉग प्रोडक्ट से नो चेंज, 70 to 90% है उसमें माइनर चेंज है, 5% to 25% चेंज। और पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड डिजाइनिंग करके अगर हमें कोई काम करना है जिसमें हमें पैसा और मार्जिन बहुत ज्यादा भी मिलता है, वो 10% के आसपास रहती है। सर लास्ट क्वेश्चन, सर आप जैसे बोले कि जब तक आपको एडवांस नहीं मिलता आप उसको ऑर्डर बुक नहीं मानते, तो जनरली आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना होता है? एडवांस कितना आता है और फाइनल पेमेंट कितने दिनों में आती है? नहीं, फाइनल पेमेंट में देखो, पेमेंट का हमारा कभी 1 लाख रुपया अगर कैटलॉग प्रोडक्ट है एंट्री लेवल का मॉडल तो 1 लाख रुपया, नहीं तो 5 to 10% एडवांस देना है। और अगर SPM मशीन लास्ट कैटेगरी वाला है 10%, जो मैंने बताया कि डिजाइन करके करना है, उसमें 50% देना है।
और माइनर मॉडिफिकेशन है तो 25% देना है। ये हमारा एडवांस का रूल्स है। उसके बाद ही हम ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आप जो पेमेंट की बात कर रहे हैं, वो पेमेंट के बगैर कोई मशीन मिलेगा ही नहीं कोई कस्टमर को। 100% पेमेंट आने के बाद ही मशीन आपको मिलेगा। एक्सेप्शनल केस में कोई कस्टमर बहुत पुराना है, अपने साथ जुड़ा हुआ है, जिसको मशीन चाहिए पर लोन 1-2 दिन डिलेड हुआ है, तो शॉर्ट टर्म के लिए 1% से कम कस्टमर को ये फैसिलिटी मिलती है। और बाकी जो आउटस्टैंडिंग है वो डिफेंस का रहता है, जिसका पेमेंट का साइकिल जो है मशीन उतरने के बाद वो 90% हमें देते हैं। 10% है वो ट्रेनिंग, कमीशनिंग, जॉब थ्रू आउट, उसके बाद देते हैं। तो एडवांस के बगैर ऑर्डर नहीं होता है और 100% पेमेंट के बगैर डिस्पैच नहीं होता है। थैंक यू सर। सर और अपने कोई टेक्नोलॉजी टाई अप कोई माने किसी चीज में अपने और 6 एक्सेस 7 एक्सेस इस सब में अगर जाना है तो कोई टेक्नोलॉजी टाई अप अपने सोच रहे हैं या रिक्वायरमेंट है, या वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन टेक्नोलॉजी? We are sufficient. I think we spend 10 to 15 years for the technology only. उसका रियलाइजेशन करने का टाइम अब आया है। हमें 7 एक्सिस नहीं, हमने 17 एक्सिस का मास्क मेकिंग मशीन बना लिया था, जिसमें 17 एक्सिस को कॉन्फ़िगरेट किया था। तो लेकिन ऐसी मार्केट इंडिया में निश है, उतना मार्केट भी नहीं है इंडिया में कि ये टाइप की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। अभी मिड सेगमेंट और थोड़ा हायर एंड सेगमेंट का रिक्वायरमेंट है। बहुत ही मल्टीटास्किंग हायर एंड की मार्केट है नहीं इंडिया में, क्योंकि इतना कॉस्टली मैन पावर नहीं है हमारा। तो जब जरूरत पड़ेगा तो जैसे कि हम रोबोटिक और ऑटोमेशन कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि दूसरों की मशीन पे आपको ऑटोमेशन करके देना है, वो दैट इज द चैलेंज। तो उतना कोई कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हाँ, कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ द मॉडल कि हम आपकी मशीन वर्ल्ड वाइड बेचेंगे, आप हमारी मशीन जो इंडिया नहीं बनाता है वो आप इंडिया में बेचो, ऐसी मॉडल पे डिस्कशन होता है काफी बार। टाइम आएगा तो वो भी करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए मैक पावर को कोई 1 रुपया या एक चीज की जरूरत बाहर की कंट्री से जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये जो आपने कैश का एडवांस का मॉडल बताया कि एडवांस लेते हैं, 100% पेमेंट लेते हैं, इसलिए हमारी कैश बैलेंस देखेंगे तो हमारी नेगेटिव कैश रहती है। और हमेशा मैक पावर के पास 20-22 करोड़ रुपया एफडीज में और लिक्विड फंड में पड़ा रहता है। इसका रीजन ही यही है कि मटेरियल जो है वो क्रेडिट पे लेना है और बेचना है वो कैश पे बेचना। धन्यवाद, थैंक यू। Thanks, Pankaj. Before we go to the next participant, we have a participant who is not able to raise his hand, Ajay Surya. You can ask your questions. Hello. Yeah, you can. Yeah. Basically, sir, I had this question like. Vikram, you'll have to please hold. We have Ajay Surya who is wanting to ask a question. Sir, this is Ajay on this line. I'm not able to join from my. Okay. Yes, sir. सर अभी जैसे आपने बोला कि 4 एक्सेस का मार्केट ही है इंडिया में मेजरली, तो अगर अपन जैसे 18,000 20,000 करोड़ का मार्केट साइज हम बता रहे हैं, तो क्या ये हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि कितने एक्सेस का अंदर क्या मार्केट साइज होगा? नहीं, उतना डिटेल तो नहीं होगा, लेकिन ज्यादा डिटेल में आपको मशीन टूल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की वेबसाइट पे जो मिनिस्ट्री का फिगर है वो मिलेगा, लेकिन उतना नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा ज्यादा मार्केट है वो टर्निंग मशीन्स का है। जैसे कि इंडिया में नंबर ऑफ मशीन्स की बात करें तो आप ऑटोमोबाइल का मॉडल है ना, हमारी मशीन टूल्स के साथ मैच कर लो, आपका पूरा मशीन टूल्स बिजनेस समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ मशीन प्राइस आप 2 व्हीलर पकड़ो तो मीन्स टर्निंग मशीन आप समझ गए। सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है वो टर्निंग मशीन है, जैसे 2 व्हीलर है। उसके बाद बीएमसी है तो आप उसको कार पकड़ लो। उसके बाद तो आप 5 एक्सिस 7 एक्सिस की बात कर रहे हो, वो आपका 7 सीरीज है बीएमडब्ल्यू या फिर एस क्लास है, वो सब पकड़ लो।
उसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली फिगर वाइज आपको देखना है ना, तो IMTM में इंडियन मशीन टूल्स एसोसिएशन की वेबसाइट पे काफी डेटा अवेलेबल है इन डिटेल। ओके। और सर एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी अपना ऑर्डर बुक और ये काफी स्ट्रांग है, तो अपन क्या नंबर ऑफ डिलीवरीज टारगेट कर रहे हैं? कि क्या हम नॉर्मल जो कटर मशीन है वो 400 पर क्वार्टर ऐसा कुछ टारगेट है, और या जो हाई एंड मशीन है वो 100 पर क्वार्टर, ऐसा अपना फ्यूचर टारगेट क्या है कि, और वो कब तक रीच करना है कि नंबर ऑफ डिलीवरीज? एवरेज जो हम लोग पेंडिंग ऑर्डर्स के हिसाब से, अवेलेबल इन्वेंट्री के हिसाब से, क्योंकि 14,500 कंपोनेंट की इन्वेंट्री करनी पड़ती है, इतनी सारी 325 वेरिएंट है, 325 वेरिएंट के लिए हमें 14,500 की इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है। से फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास मैंने अनाउंसमेंट दिया था BHEL का 5 करोड़ का ऑर्डर आया है, तो उसकी मशीन उसको कल दूं तो कल लेने वाला है, लेकिन उसकी ग्लास स्केल है वो मुझे जर्मनी से 2 महीने के बाद मिलेगी। उसकी जो CNC सिस्टम है वो 2.5, उसका गियर बॉक्स है वो 2.5। तो हम लोग मॉडल के हिसाब से जाने से बेटर है कि आपकी प्लांट कैपेसिटी में आपके पास जो ऑर्डर है उसके सामने आपके पास जो इन्वेंट्री है उसका यूटिलाइजेशन करके आपका प्लांट कैपेसिटी है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। अगर ये BHEL को मैं 5 करोड़ का कल दे दूं तो ले लेगा, लेकिन वो बनाना इतना फास्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी कंपोनेंट्स जो है वो यूनिक है। तो हम लोग एवरेज आउट करने के लिए पर मंथ का टारगेट जो करते हैं वो ज्यादातर नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ मशीन्स की साथ उसकी वैल्यू को करते हैं। तो डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसे आप सबको मालूम है कि कैपिटल गुड्स में फर्स्ट क्वार्टर से बेटर सेकंड, सेकंड से बेटर थर्ड, थर्ड से बेटर फोर्थ रहता है। वो सेम पैटर्न है वो फॉलो होगा, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज पेंडिंग ऑर्डर। और इकोनॉमी के अंदर जो थर्ड क्वार्टर में जो हमारा ऑर्डर फ्लो भी जो दिख रहा है वो बड़ा है, और कुछ रोड शो से हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा किया है। हमने जामनगर में एक टेक सेंटर करके जामनगर की ऑलमोस्ट मार्केट का 30% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। हम कोयम्बतूर के अंदर अभी नेक्स्ट मंथ में टेक सेंटर ओपन करने जा रहे हैं। हम साउथ मार्केट पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और काफी अच्छा बिजनेस हमें, जहां पे होम टाउन है LMW का और एज डिजाइनर का, जो इंडिया की टॉप 2 कंपनीज है, उसके यहाँ से भी बिजनेस लेके आ रहे हैं। क्योंकि सम ऑफ द टेक्निकल थिंग्स विच इज द यूनिक इन द मैक पावर मॉडल, कि हमारे पास 45 डिग्री स्लैंट बेड है, हम रोलर गाइड यूज करते हैं, हमारी मशीन्स पे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है वो कंपेयर टू अदर मशीन्स ज्यादा आती है। तो ये सब चीज हम बोलते हैं, वो प्रूव करके भी देना है। तो हम इवन जहाँ पे बहुत बड़े साउथ के प्लेयर बैठे हैं उनकी टेरिटरी में भी सेल्स के लिए काफी अच्छा बिजनेस लेके आ रहे हैं। और हमने कोयम्बतूर के अंदर सक्सेसफुली काफी बड़ा VTL के ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट किए हैं, और हमारे पास अभी भी उनकी VTL की आयरन मशीन्स की ऑर्डर्स भी है। तो नंबर ऑफ मशीन्स और वैल्यू वाइज हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, और डेफिनेटली ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लस ही आएगा। ओके सर, थैंक यू, दैट्स ऑल। Thanks, Rajat. We'll take the next question from Ruchit Shah. Hello, am I audible? Yeah, Ruchit जी। ओके सर, पहली चीज तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जो चीज काफी टाइम से आई थिंक बोल रहे थे कि हमने ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ाई है ओवर एंड जो सेल्स ग्रोथ आएगा, सो आई थिंक उसका फाइनली एक तरीके से हमारे लिए ये वैलिडेशन हो गया कि कैपेसिटी एंड जो नंबर ऑफ मशीन्स हम सेल कर रहे हैं वो सब्सटैंशियली इंक्रीज हो गई। सो उस चीज के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर, आप ये जो बोल रहे हैं कि 1500 से अब हमारा कैपेसिटी 1800 और 2000 तक भी होगा, तो बेसिकली वो एक चीज तो कब तक होगा? एंड ये कैपेसिटी हमने बढ़ा दी है, बट वो एग्जीक्यूशन में और कोई भी चैलेंज जो आपको दिख रहा हो कि क्या चैलेंजेस आ सकती है बेसिकली वो एक्चुअल में सेल उतना बढ़ाने के लिए?
हमें दो चीज की बात है इसमें, कैपेक्स खाली डालने से नहीं होगा। 2000 मशीन, एक तो कंस्ट्रक्शन चाहिए, उसके लिए लैंड चाहिए, लैंड हमारे पास इनफ है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दूसरा मैन पावर चाहिए, वो इजीली हम अवेलेबल करेंगे। तीसरा हमें मटेरियल चाहिए। कोई भी चीज में प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स चाहिए, मैन पावर चाहिए और कंस्ट्रक्शन चाहिए था, तो वो सब चीज की तैयारी कर चुके हैं। कुछ कंपोनेंट 2000 के बाद चैलेंज दे सकते हैं कि उसका मार्केट में इंडिया में अवेलेबल ही नहीं होगा। वो कंपोनेंट है स्पिंडल और टरेट और एटीसी। स्पिंडल ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, अभी हम लोग टर्निंग मशीन की स्पिंडल इन हाउस बना रहे हैं, और हमारा एक वीएमसी मशीन है जिसकी स्पिंडल हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं ताइवान से। वो मशीन की स्पिंडल भी अभी हमने इन हाउस डेवलप कर ली है, 2 महीने से R&D में है। मे भी अगले 2 या 3 मंथ्स में हम लोग वीएमसी की स्पिंडल भी इन हाउस करेंगे, जो हम लोग अभी तक इंपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद जो आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, उसमें 2 चैलेंज है कि ऑर्डर बुक के सामने उसकी बिलिंग कराना भी जरूरी है, क्योंकि 99% लोग बैंक की लोन के बगैर करेगा नहीं, और मैक पावर ऐसा कंपनी है इंडिया में जो क्रेडिट देगा नहीं। अगर मेरी कैपेसिटी भी 2000 की है और मुझे 2000 का पैसा नहीं मिलेगा, एडवांस खाली मिला है, तो मैं क्रेडिट पे रियलाइजेशन नहीं करूंगा। भले 1800 मशीन 200 मशीन मेरे पास स्टॉक में पड़ी रहे, जो पैसा देगा, क्योंकि आपका क्यूए क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो मैंने बनाया 350 से ज्यादा मशीन है, ओके, लेकिन 332 का रियलाइजेशन हुआ क्योंकि उसने पैसा दिया। तो क्रेडिट दूंगा तो 2000 का रियलाइजेशन आएगा, लेकिन मैं क्रेडिट नहीं दूंगा क्योंकि कैपिटल गुड्स में हम लोग मैक पावर का एक रूल्स है कि वो क्रेडिट पे काम नहीं करेगा। तो 1800 मशीन तक का रियलाइजेशन हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर लेंगे, और ऑर्डर बुक बढ़ाएंगे। जैसे कि 2000 मशीन डिस्पैच करना है तो व्हाई नॉट टू बुक 3000 मशीन ऑर्डर, कि 100% निकल जाए। तो दूसरा चैलेंज आएगा आपका सेल्स फोर्स बढ़ाना, और साथ में सर्विस का इम्पोर्टेंट सेल्स जितना ही है, तो प्रॉपर सर्विस, कस्टमर को प्रॉपर ट्रेनिंग और स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी उनकी होम टाउन में, लोकल सिटी में होनी चाहिए। तो ये 3 चीज पे हमें काम करना है, और उसके लिए मेरा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑलमोस्ट फील्ड में ही रहते हैं, ट्रैवल ही करते रहते हैं, और ब्रांच को स्ट्रेंथन कर रहे हैं HR के साथ मिलके। ओके सर, सो आपने बताया बेसिकली कि रॉ मटेरियल्स के लिए तो हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और वो भी मेजरली 2000 से भी ज्यादा हो जाएंगे, तब भी उसका जो भी चैलेंजेस है उसके लिए ऑलरेडी हम लोग वो एड्रेस कर रहे हैं एक तरीके से। और क्रेडिट आपने जो बताया वो तो ब्रॉडली मार्केट की चीज है, लाइक मार्केट के साइड से रिक्वायरमेंट और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी भी हो जाना वो हमारे हाथ में नहीं है, बेसिकली वो मार्केट में से है। सो उसमें हमने आपने पहले ये बताया कि इंडस्ट्री में ओवरऑल सो ब्रॉडली हमारा जो ग्रोथ आएगा वो 2 चीज से समझ रहा हूँ। एक तो हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है, एंड मेजरली हम लोग को जो ग्रोथ आता है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से आता है, या मार्केट या इंडस्ट्री साइज बढ़ने से भी आता है? नहीं, हमारा ग्रोथ जो आता है वो मार्केट शेयर लेने से भी आता है, क्योंकि मार्केट शेयर में 2% ही हम मार्केट को अभी कैप्चर कर रहे हैं कंजप्शन की। बहुत ज्यादा मार्केट शेयर नहीं है, ऑल टूगेदर सारा बास्केट को मिला के मेजर शेयर आ रहा है टर्निंग मशीन से, सेकंड आ रहा है VMC से, VTL, HMC, डबल कॉलम, एंट्री लेवल की मॉडल, उस पे मार्केट शेयर था ही नहीं, अब बढ़ा रहे हैं। तो टोटल मशीन टूल्स का जो इंडिया का प्रोडक्शन है उसमें मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाएंगे तो मार्केट शेयर बढ़ाना है। दूसरा, मार्केट शेयर बढ़ाने से भी नहीं होगा। एक टाइम पे मैक पावर की डिलीवरी 6 मंथ हो गई थी, तब हमने ये सोचा था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो हर चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया,
अब हम लोग पहले प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाएंगे, उसके साथ में सर्विस का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो 3 मेजर एक्सपेक्ट रहेगा मैक पावर के लिए। अदर कंपनी के लिए 4 एक्सपेक्ट रहते हैं। उसके लिए फाइनेंस मनी का भी इश्यू रहता है कि कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाएंगे, कैपेक्स के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, उसके बाद उनका कैपेक्स डालेंगे, उनकी वर्किंग कैपिटल डालेंगे, फिर माल आएगा, फिर कस्टमर मिलेगा। मैक पावर के लिए वो मॉडल में चैलेंज ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कैश बैलेंस है, क्रेडिट हम देंगे नहीं, अपने पास रिजर्व कैपिटल है, अपना खुद के पैसे से तो पैसा है, वो मैक पावर के लिए चैलेंज नहीं बनेगा। लेकिन जब आप 2000 मशीन्स की बात करते हो तो काफी लिक्विडिटी की भी जरूरत पड़ेगी, काफी कैपेक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो मॉडल को तो मैंने 0 कर दिया है कि वो पैसा कहाँ से आएगा, लोन लेना पड़ेगा, मार्जिन पे असर आएगा, पेट पे असर आएगा, वो चीज आएगी ही नहीं। तो हमें खाली करना है सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना है। साइमल्टेनियसली उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्विस का और स्पेयर्स का, उसको स्ट्रेंथन करना है, जिसमें इंडिया में सर्विस के अंदर भी हमारे 78-79 पीपल है इक्वल टू सेल्स, उसको बढ़ाना है। हर 40 मशीन्स पे मैक पावर का रूल्स बनाया है कि हर 40 मशीन्स पे एक सर्विस का आदमी ऐड होना चाहिए, जिसमें हमने अलग अलग ग्रुप किए हैं। जो कमीशनिंग करेगा, ट्रेनिंग देगा, वो ग्रुप अलग है, जो विद इन वारंटी करेगा वो ग्रुप अलग है, जो आउट ऑफ वारंटी चार्जेबल बेस करेगा वो अलग है। तो जो भी चैलेंजेस आएगी वो इंटरनल मैनेजमेंट साइड से होगी। एक्सटर्नल फैक्टर को मैं चैलेंजेस पे लूंगा ही नहीं कि कल मार्केट स्विंग हो गया या फिर मार्केट डाउन हो गया और मैक पावर डाउन हो गया, वो नहीं होगा। अब होगा वो सारा चैलेंजेस जो है वो अपने अंदर ही है, क्योंकि इतनी सारी प्रोडक्ट बना दी है मैंने लास्ट 10 साल में कि अगर कोई भी प्रोडक्ट का 2-2, 4-4 पीस भी निकालूंगा तो रिसेशन वर्ड आएगा ही नहीं। ओके सर, सो आई थिंक आप बेसिकली बोल रहे हैं कि हमारा मार्केट शेयर भी हम इंक्रीज कर रहे हैं थ्रू गेटिंग इनटू न्यू सेगमेंट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस स्ट्रेंथन की है। एंड सिर्फ एक चीज थी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा था कि हम लोग की जो एवरेज मशीन्स की कॉस्ट है 20 लाख के अराउंड की प्राइस है, एंड अगर जो मार्केट या इंडस्ट्री साइज 20,000 करोड़ है, तो क्या हम लोग वो प्रीमियम साइड में रहेंगे या मार्केट में एवरेज सबका यही के अराउंड रहेगा, 20 लाख के अराउंड ही रहता रहेगा? मेरे हिसाब से 25 लाख से ऊपर किसी की एवरेज आने का, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है 35 इयर्स का मशीन टूल्स में, और इंडियन मशीन टूल्स को भी रिप्रेजेंट में 12 साल कर चुका हूँ। इस बिजनेस के बारे में मैं एक्साइक्लोपीडिया हूँ। मैं नहीं मानूंगा 25 लाख से ज्यादा कोई बड़े प्लेयर की, ये टॉप 6-7 प्लेयर की। इंडिविजुअल आदमी खाली एक ही मशीन बनाता है महीने की 1 करोड़ की, उसकी बात अलग है। लेकिन इंडिविजुअली जो बड़ी कंपनी है 500-1000 करोड़ का, उनके लिए 25 लाख से बड़ा रियलाइजेशन, 30 लाख से बड़ा रियलाइजेशन इम्पॉसिबल। ठीक है सर, थैंक यू। आई थिंक Thanks, Ruchit. We'll go on to the next participant. Mahesh, you can go ahead and ask a question. Hi, sir. Thank you so much for the opportunity. Sir, just wanted to know, out of the total requirement, the parts or components you require to make for CNC machines, आप internally कितना बनाते हैं और बाहर से कितना लेते हैं? For example, like casting, welding, motor, sensors. So इसमें कितने चीजें आप इंटरनली बनाते हैं, कितने? वर्ल्ड वाइड सीएनसी मशीन्स बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट लगता है वो सीएनसी कंट्रोल है, जो फानुक जापान, मित्सुबिशी जापान और सीमेंस जर्मनी है, उसका 3 कंपनी का 95% मार्केट शेयर होगा। ये चीज तो वर्ल्ड वाइड दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर डेकन माओ है या मोरिसाकी है या आस ऑटोमेशन है, जो इंडिया बनाता है उससे 10 टाइम खाली अकेला बनाता है, जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसको भी एक कंट्रोल है, वो बाहर से ही लेना पड़ेगा, वो इन हाउस पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद लीनियर मोशन गाइड वेज है, वो ताइवान और जापान से इंपोर्ट हो रही है। अभी इंडिया में जापानीज कंपनी ने प्लांट डाला है, तो वो भी कभी किसी मैन्युफैक्चर के यहाँ पे
एलएम एंड बॉल स्क्रूज वो इन हाउस नहीं हो सकते हैं। फिर सीट मेटल है, कंज्यूमेबल है, ये सब चीज की अगर हम बात करेंगे तो वो विच इज नॉट पॉसिबल। तो टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो 30% के आसपास आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा। आप सारी चीज बनाओगे तो 60% से ज्यादा आप इन हाउस नहीं कर सकते हो। और मैक टावर है वो अभी 35% के आसपास ही है। हमारे लिए मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए और भी 25% की जगह है, जैसे कि टरेट बोला मैंने, एटीसी बोला, कुछ मशीनिंग बोला, और उसके बाद फाउंड्री कास्टिंग जो सबसे बड़ा वैल्यू है मशीन्स में, वो भी हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कर सकते हैं। तो मैक पावर है वो 35% के हिसाब से मैं मान रहा हूं कि बैकवर्ड कंपोनेंट बनाता है, और 60% से ज्यादा या 65% से ज्यादा मेरे हिसाब से कोई कंपनी इन हाउस नहीं कर पाएगी। जैसे कि 100% मैं बना रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। Sure, sir. Or, sir, regarding when we supply machines to the customers, so do we provide tools also, or is it that the tools are produced by companies like Sandvik or Kennametal and so on? गवर्नमेंट के अंदर आपको सप्लाई करनी है, और जो लास्ट 10% मैंने बोला था एसपीएम मशीन, जिसमें पिक्चर टूलिंग टूल्ड अप मशीन देना है, उनको आपको देनी है, पर बहुत रेयरली वो टूलिंग हमसे लेंगे। हमें सैंपल पीस उसका प्रूव आउट करके देना है, जिसकी टूलिंग कॉस्ट हमने उनकी कॉस्ट में ऐड कर दी है। तो ये कंज्यूमेबल चीज जो है वो लोग अपने अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से, सैंडविक है, केनामेटल है, उनसे ही लेंगे। And sir, if I look at next 5 years, आपको लगता है कि this industry can grow, 20% plus CAGR, given the demand, manufacturing industry and China plus one, and so many things are going on in India. So industry, as an industry, can grow in double 20% plus over next 5 to 7 years. ज्यादा मान रहा हूँ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो, ये इंडस्ट्रीज कभी बंद नहीं होगी। ये इंडस्ट्रीज के बगैर कोई कंट्री का ग्रोथ होगा ही नहीं। ये गवर्नमेंट को भी पता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज को बैकबोन माना गया है। गवर्नमेंट की जो 15% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उसकी गवर्नमेंट की विजन के हिसाब से 25% पे लेके जाना है, तभी हम डेवलप कंट्री कहलाए जाएंगे। और रोजगारी जो है, एम्प्लॉयमेंट है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही देगा। तो उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है मशीन्स। आप टेक्सटाइल मशीन्स बनाते हो तो मशीन्स चाहिए, आप प्लास्टिक की बोतल बनाते हो तो मशीन्स चाहिए, आपको पावर प्लांट है तो मशीन चाहिए, डेयरी प्लांट है तो मशीन चाहिए, इंजन पार्ट्स है तो मशीन चाहिए, डिफेंस है। ऐसे मेरे पास 3000 सेगमेंट्स है मैन्युफैक्चरिंग के, जिसमें मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये सेगमेंट डेफिनेटली ग्रो करेगा। अगर कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ग्रो कर रहा है तो ये सेगमेंट को उससे 10 टाइम ज्यादा काम करना पड़ेगा, और उस 10 टाइम में भी हमें उससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि 90% मार्केट शेयर ये 6 कंपनी के पास है। Sure, thank you so much, sir. Right. So we'll take one last question which has come in the chat. Yeah. Usually H2 is better for our kind of companies versus H1. So Q4 के आगे, beyond Q4, looking at FY25, do you expect similar business momentum to continue, especially on the volume side? Both sides. In a 25, definitely revenue will increase by 25% to 30% minimum, and EBITDA will also increase by 14.5 to 17 to 18% in a FY25. Right, sir. So that was the last question for the day. कितने पार्टिसिपेंट है टोटल, कितने लोग? Sir, 99 थे, अभी 72 है. People have logged off for other calls. Would you like to give some closing comments, sir, before we end this conference call? Yeah. So overall,
जो हमने बताया कि थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम, और ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीम कैप्टिफाई को भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन जो बनाया है। मैं कल से बोल रहा हूँ कि अट्रैक्टिव है, कुछ टेक्निकल थिंग्स जो मेरे दिमाग में नहीं है वो भी आपने डाली है, और काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है। सो आप सबको ये प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर दीजिए। और जो जर्नी हमने स्टार्ट की है, हमने काफी टाइम R&D में स्पेंड किया, कैपेसिटी बिल्ड करने में किया, इसलिए थोड़ा हमें ग्रोथ देने में टाइम लगा, लेकिन अब हमारा प्लेन उड़ गया है, हेलीकॉप्टर उड़ा है, अब रुकेगा नहीं, ये एश्योरेंस मैं देता हूँ सबको। और ये जर्नी खत्म होगी, आपका जो इंडिया का ग्रोथ है, मैक पावर का ग्रोथ है, उसके बाद तो अभी भी हमारे लिए बहुत मार्केट खुला पड़ा है। और हम लोगों का जो कस्टमर बेस है, रिपीट ऑर्डर का रेशियो जो है वो हाईएस्ट है, और वो हम कंटिन्यू करेंगे, और ये ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली हम आपको करके देंगे। थैंक यू विनय जी। Right, sir. Thank you so much. And thank you to the management of Mac Power for giving us their valuable time. And thank you to all the participants for joining on this call. You may all log off now. Thank you so much. Thank you.